आज ये जो शाम को महफिल जमाई है PACC ने, तो एक तो ये कि आप PACC का मतलब समझते हैं, it stands for Pakistani-American Cultural Center. So, in other words, it has to do with culture. The second part of the evening is music. So what I'm going to talk about is put this in context, culture and music, particularly in Pakistani context. And what I'm going to do is I'll take you through I'll actually start with a 13th century musician who I consider the founder of what we have today as the Indo-Persian culture and music, which you find in both North India and Pakistan. So I'm going to take you through a journey, and on this journey I'll show you a bunch of video clips to illustrate the defining moments in this history of music and the key artists and their work. So the next slide. So as far as the importance of music and culture is concerned, as you know, music helps define a nation. It is a very identifying characteristic of a nation. And it's a very important part of being a people in terms of not only defining yourself, but also in projecting what is considered soft power. मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में बोलता जाऊंगा बीच में. तो सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के एक प्रोफेसर हैं, डीन हैं, Professor Joseph Nye. He actually introduced this concept, and essentially what it says is that soft power, which is the power you project through arts, literature, and culture, is in fact far more important than the hard power, which is the power you gain through the military weapons. He has written 2 books on this particular subject alone. और एक चीज़ जो अक्सर कही जाती है वो ये है कि अमेरिका की एक तो ताकत है जो हॉलीवुड में रहती है. You know, they make movies, they create music, they do entertainment, and then the other power is Pentagon. So a lot of people believe sincerely that Hollywood is actually much more powerful than Pentagon. क्योंकि पेंटागन के जो मिलिट्री इन्वेजन वगैरह उसको तो लोग रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो कल्चरल इन्वेजन है उसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है. इवन वो लोग जो बहुत विरुलेंटली एंटी अमेरिकन हैं, आप उनको मुल्कों में चले जाएं तो यू विल हियर वेस्टर्न अमेरिकन म्यूजिक, you will hear the names of American artists, and you will see American fast food. Pakistan में मैं गया अभी पिछले साल वहाँ, you know, people are very anti-American. But if you go to McDonald's, it's full of people. Where did McDonald's come from? It's an American cultural invasion, basically. The second thing is drinks. I mean, Coca-Cola, they consume lots of Coke, they consume lots of Pepsi. So we have actually, we're already dealing with the fact that American cultural power is far more significant than the American military power. तो इस सिलसिले में अगर हम अपने कल्चर को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देंगे तो उससे जो वैक्यूम जो क्रिएट होगा, उस वैक्यूम को दूसरे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस फिल करेंगे, और अगर आप दूसरों को फिल करने देंगे तो यू विल नॉट लाइक द रिजल्ट्स. दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया में प्रोजेक्ट करें तो people have a more positive view of you. You know, if you talk about your arts, your music, your culture, your literature, then people are much more impressed, much more interested in you than if you simply talk about we've got nukes. So it's very important that we pay attention to our cultural landscape as well and make sure that we project that soft power that we have. अच्छा, origin क्या है हमारे जो
आजकल जो जिसको हम म्यूज़िक हमारी समझी जाती है पाकिस्तान की, इसका ओरिजिन है इंडो-पर्शियन ओरिजिन, जो कि a lot of Persians actually, Central Asian Persians, came to India over the centuries, और उन्होंने वहाँ की म्यूज़िक को बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो इनमें एक जो सबसे बड़ा नाम है वो है हज़रत अमीर खुसरो का। ये 13th सेंचुरी के सूफी सेंट थे, और इनकी ये बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। अगर आप कभी दिल्ली आपका जाना हो, so there is a place there called निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया एक बड़े सूफी सेंट था, उनका मज़ार है दिल्ली में। तो इनकी कब्र जो है, ये उनके डिसाइपल थे हज़रत अमीर खुसरो, उनके बराबर में है, और millions of people come to pray there and to celebrate their life। तो इन साहब ने जो इंडिया की जो म्यूजिक है ना, उसमें आमतौर पर 3 इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा उसको डिफाइन करते हैं। एक तो तबला, आप कभी भी किसी इंडियन म्यूजिक इवेंट में या पाकिस्तानी में तबले के बगैर म्यूजिक नहीं हो सकती। अच्छा, तबला इन साहब ने इन्वेंट किया था। अच्छा, तबला जो है उसका जो वर्ड है अरबिक में वो तबल है। तबला कम्स फ्रॉम तबल व्हिच इज एन अरबिक वर्ड, तो वो इनकी इन्वेंशन है। दूसरी जो इनकी इन्वेंशन है वो है सितार, जिसको असल में ये पर्शियन का, फारसी का लफ्ज है सितार। एक्चुअली इट्स सहतार। सहतार मीन्स 3 स्ट्रिंग्स, वो इनकी इन्वेंशन है। तो अगर आप 3 बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट देखें जो इंडियन म्यूजिक को डिफाइन करते हैं, तबला, सितार और तीसरा हारमोनियम। अच्छा, हारमोनियम भी इंडिया की इन्वेंशन नहीं है। हारमोनियम एक्चुअली वाज इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच and they brought it to India in the 18th century। तो तबला और सितार जो है वो 13th सेंचुरी की इन्वेंशन हैं अमीर खुसरो की, और जो हारमोनियम है वो इंडिया में आया 18th सेंचुरी में, फ्रेंच लेकर आए हैं इसको। So this is some of the background for the kind of music we have now। अच्छा, उसके बाद I will talk a little bit about post 1947, कि जब 47 में पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया से अलग मुल्क बन गया, तो उसके बाद हमारा क्या एवोल्यूशन है। नेक्स्ट स्लाइड। तो एज आई सेड, बोथ नॉर्थ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज हैव अ कॉमन हेरिटेज, और खुसरो साहब ने सब, आई ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, तो व्हाट डू वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ मैं इलस्ट्रेट करूंगा एक बहुत ही मशहूर उनका कॉम्पोजिशन है अमीर खुसरो का, और ये यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, एक वीडियो क्लिप है शॉर्ट, ये परफॉर्म कर रहे हैं नुसरत फतेह अली खान। तो व्हाट डू वी प्ले दैट क्लिप। बताइए, पहचाना कोई? क्या है ये? छाप तिलक सब छीन ली, रमो से नैना मिले। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अच्छा, अब पाकिस्तान जब बन गया 1947 में, तो उस वक्त ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी, एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री, वो उन हिस्सों में थी जिनमें जो इंडिया था। ज़्यादातर मुंबई में थे, हालांकि उसमें भी मुसलमानों की बड़ी तादाद थी वहाँ, लेकिन यहाँ के लोग भी वहाँ चले गए थे। तो सबसे पहली जो फिल्म पाकिस्तान बनने के बाद रिलीज हुई है वो हुई थी 1948 में, और उसका नाम था तेरी यार, लेकिन वो खास ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। सबसे पहली फिल्म जो पाकिस्तान की बहुत कामयाब हुई और जिसकी म्यूज़िक और गाने बहुत ज़्यादा चले, और इंडिया और पाकिस्तान उस ज़माने में दोनों में फिल्म रिलीज होती थी, पाकिस्तान की इंडिया में, इंडिया की पाकिस्तान। तो ये दुपट्टा फिल्म थी 1952 में नूरजहां की, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में रिलीज हुई। इट वाज हिट इन बोथ कंट्रीज, और इसके बड़े मशहूर गाने, तो लेट्स प्ले वन ऑफ दोस सॉन्ग्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन।